And this is what we are going to talk. How does our brain process the information? In other words, what we're going to learn is learning how to learn. When we were doing our training as medical educationists, one of our teachers, and a very important and very prominent medical educationist of this country, Professor Muhaddad Rana, he just said that when a first year student comes in a medical college, before teaching them anatomy, physiology, biochemistry, we must discuss with them how our brain assimilate the informations. It's a boring subject, it's a tiring subject, but since yesterday you are enjoying it, so this 1.5 hours will be a boring hour, but you have to bear with me. What we are discussing now is how our brain works. In other words, when we say learning, what is going on in our head? That is what we're gonna learn. See, the most important thing related to this learning is memory. What do you think memory is? याददाश्त. मेमोरी क्या होती है? यानी क्या? Retention of information over the time is called memory. और अगर आप I'll be bilingual, I'll be talking Urdu. Is there anyone who does not understand Urdu? Any foreigners? No. देखें, अगर हम इंसानी ज़िंदगी को देखें ना, इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो उसका इंसान पना है, that is all related to memory. If you take the memory of the learned memory, then there is no difference between an animal and a human being. And in fact, animal is more equipped to look after itself as compared to a human. When a goat gives birth to a child, after about 4 hours, that child starts running. But a human child requires at least 2.5 years to stand on his feet. And then he walks with a waddling gait. It takes around 7 years for the conscious brain to start acting. In other words, what makes a human being different from an animal is just the memory. If you take the memory chip off from the head, a person becomes worse than an animal. So memory is the main thing which makes us intelligent. A memory is which is making us Musliman. A memory is which making us doctor. A memory is making us father of someone, child of someone, citizen of a country, believer of a faith. It's only the memory. Doctor, engineer, it's a memory. So memory is the main. In other words, we are humans because we have got a memory, right? Okay. Now, memory, in order to understand, have got 3 different phases. I'm just explaining it for the purpose of explaining as a separate entity, but they are actually mixed together. ये अलग से partitions नहीं हैं, but in order to understand it, just presume that it has got 3 partitions. The first memory is called sensory memory. The second is called working memory or a short-term memory. And the third one is called long-term memory. जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? हम इंसान हैं इसलिए कि हमारे अंदर एक मेमोरी है. प्रोफेसर मुनीर अजहर साहब हैं, इनको पता है कि ये किसके बाप हैं, किसके बेटे हैं, किस मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, किस इलाके के रहने वाले हैं, इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या, ये सब चीज़ें सिर्फ मेमोरी के, ये मेमोरी है which is making him unique from Professor Mustansir and from Professor Niaz. This is just memory, right? And this memory in our head is in 3 parts: sensory memory, short-term or working memory, and a long-term memory. Now we'll just take them one by one. I'll make it very simple. If you don't understand, raise your hand, right? Sensory memory is ability to look at an item and remember what it looked like with just a second of observation and memorization. आप सड़क पे जा रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, एक बोर्ड था, एक अचानक रक्षा आ गया, आप पीछे हो गए, अचानक एक जानने वाला मिल गया, आपने सलाम किया, अचानक आपने देखा एक दुकान पे कुछ चीज़ बिक रही है. ये सारा कुछ जो आपके पास आ रहा है, it is in sensory memory. And whenever you are studying, whenever you are listening a lecture, when you are witnessing an operation or examining a patient, whatever you are doing,
it immediately comes into the sensory memory. And this is the stimulus. Stimulus किस तरह का हो सकता है? वॉइस हो सकती है, लाइट हो सकती है, और टेक्टाइल हो सकती है, टेक्टाइल हो सकता है, और जस्ट एक दिमाग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है. तो ये सारे स्टिमुलस हैं, सारे स्टिमुलस हैं. अब एक आदमी आपकी तरफ देख रहा है, अब एक आदमी मुंह से कोई डिफरेंट तो नहीं है ना सारा, लेकिन आपके दिमाग ने जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया है बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द लिप्स एंड द ब्रॉडनिंग ऑफ द प्यूपल, तो वो भी एक स्टिमुलस है. तो जब भी एक स्टिमुलस हमारे दिमाग में आता है तो मेमोरी के अंदर जिस फॉर्म में आता है उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी. और आप हैरान होंगे, वेदर इट इज टेक्टाइल, वेदर इट इज ऑडिटरी, वट एवर इट इज, our sensory memory can only perceive it either as a visual thing or an auditory thing. Even tactile sensation ko bhi, when it goes to the neurons, actually it is converted into either an auditory or a visual. And you will be surprised to know that 99.9% of sensory memory is just wasted in few seconds. आप भी सड़क से गुजर के गए हैं, वापस आए हैं, उसमें से 99% चीजें आपको याद नहीं होंगी. They will be lost. And the retention time for a visual thing is 1.5 seconds. And for auditory is 2 to 4 seconds. लिहाजा जब आप किताब पढ़ रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिस रास्ते से वो सब कुछ गुजर के जाना है, उस रास्ते गरीब की औकात सिर्फ 2 सेकंड और 3 से 4 सेकंड, उसके बाद वो लॉस्ट हो जाएगा. और लेकिन एक तरीका है जिससे आप उसको चिपका लेंगे और वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपकी पढ़ाई में आपको बड़ी मदद मिलेगी. वो ये है कि ये बात मुकम्मल के जब ये आ रहा होता है ना, जब सेंसरी स्टिमुलस आ रहा होता है, तो ये सेंसरी स्टिमुलस कोई मीनिंग नहीं क्रिएट करता. आवर माइंड डज नॉट मेक एनी मीनिंग आउट ऑफ इट. इट ओनली रिकॉग्नाइजेज द पैटर्न. ब्रेन ओनली रिकॉग्नाइजेज द पैटर्न. हाउएवर, पैटर्न इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंग only when a signal from long term memory joins it. I am just walking, I see 10 people going, I will not register it, but suddenly I saw him, a signal from my long term memory will come that he is my childhood buddy, Mustansir, oh ki haal hai, blah 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 blah, and then suddenly that stimulus becomes important for me. But if link from long term memory will not come, this will just be gone. Now for teachers and medical and students, this thing is very important. Whatever you are studying, whatever you are looking at, if it has got a prior relationship with your memory, it will stick. So for example, someone is going to teach you radial artery, and your teacher has already told you a night before that tomorrow we will be talking about radial artery. I'll tell you the other things later, but please remember when you hold your hand here, जिसको उर्दू में नब्ज कहते हैं, वो radial artery होती है. That's it. And next day when she starts teaching you about radial artery, the moment word radial artery will be uttered by Dr. Sabahat, a signal will come from the long term memory. Yes, I know what radial artery is. ये नब्ज है जो हाथ पकड़ के देखते हैं. And suddenly that thing will stick there. समझ में आई बात? लिहाजा पहला जो टेक होम मैसेज है, जो कुछ आपने करना है उसका प्रायर नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें. और टीचर्स को भी हम ये बात करते हैं, ये सारा टीचर्स के साथ भी डिस्कस कई दफा कर चुके हैं, कि कोई चीज पहली दफा बच्चों को ना पता चले. ये ना हो कि आप कैटरेक्ट पढ़ा रही हैं तो पहली दफा कैटरेक्ट, अच्छा मैडम क्या कैटरेक्ट, CATRI ना, उससे पहले उनको मोतिया आंखें, याद है आपके नाना की आंखें हो गई थी तो मोतिया, वो एटलीस्ट दिस बेसिक नॉलेज विल बी देयर. देन immediately a link will come from
लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड नाउ दिस विल नॉट बी लॉस्ट. बॉडी कहेगी इसको पकड़ना है, यानी माइंड कहेगा इसको पकड़ना है. और जो दूसरी चीज है, एक और चीज, तो इन अदर वर्ड्स जो दूसरी चीज है ना, वो मैं बताता हूं. तो सेंसरी, आपको समझ में आ गई बात? तो इन सेंसरी मेमोरी चीजों को जाया हो जाएंगी आपकी. अब जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने लगें तो इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा. अगर आपका प्रायर कोई उसके साथ लिंक होगा तो रुक जाएगी, अदरवाइज वो स्लिप हो जाएगी. अच्छा, यहां से मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं. ठहरिए, मार्कर है हमारे पास, यहां चौक. थैंक यू. This is our brain, a bottle. Now this opening of the bottle is the sensory memory. This is the sensory memory. And if you pour lot of water in a bottle from all sides, most of it will not go into the bottle. The only one which has got a link with the long term memory, वो उसके साथ चला जाएगा. और नया नॉलेज उस वक्त रुकेगा, वो मैं आगे बताऊंगा कि उसकी भी एक टेक्निक है. उस टेक्निक को, उसको कहते हैं अटेंशन. इफ यू आर अटेंटिव टुवर्ड इट, टेक्निकली स्पीकिंग अटेंशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं. ओके, नाउ वंस दिस गोज, यू नो, इट क्रॉसेस द सेंसरी मेमोरी, इट गोज इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज वन वेयर पैटर्न्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू सम मीनिंग. यू गेट सम मीनिंग ऑफ इट. मुझे एक बंदा नजर आया था, ये सेंसरी मेमोरी में था, लॉन्ग टर्म मेमोरी से एक लिंक आया, तो मुझे पता लगा ये तो मुस्तनसर महमूद साहब है. यानी जो ये वाली समझ आने वाली बात है ना, ये समझ आने वाली बात शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर शुरू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां का भी जो रिटेंशन टाइम है वो है 30 सेकेंड. 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के अंदर अंदर अगर आपने उसको संभाल लिया तो वो स्लिप होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. अगर नहीं तो ये भी जाया हो जाएगा. ये बात आपको समझ में आ गई? 30 सेकेंड. और दूसरी बात यह है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम है. द कैपेसिटी ऑफ दिस नेक इज वेरी स्मॉल. दे आर इन द फॉर्म ऑफ चंक्स. एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के साथ, एनिमल के साथ रिपीट किया गया, जिसमें उनको नंबर बताया गया, 5, 18, 19, 27, 26, 22, इस तरह नंबर चार्ट्स में लिखे गए, और उनको एक खास टाइम के लिए दिखाया और उनको कहा कि इनको आप रिटेन करें. तो यह पता चला कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है 5 to 9 चंक्स, 5 to 9 यूनिट्स. यानी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो 5 या 9, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा माइंड कितना ट्रेंड है, हम लायक हैं कि कम लायक हैं. तो उसमें 5 से 9 की कैपेसिटी है. अच्छा, हमारा ये ख्याल है कि अगर आप 5 उनको चंक, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, यहां से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. इफ वी हैव गॉट 5 यूनिट्स, वी विल रिमेंबर इट एंड वी विल बी एबल टू पुश इट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. इफ इट बी 6, थोड़ा जोर लगाएं तो ठीक, 9 तो ठीक. अगर हम उसको 15 कर दें तो हमारा यह ख्याल है कि कोई से 5 जहन में आ जाएंगे, बट द स्टडीज शोड कि फिर कोई भी नहीं आएगा. दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग. इफ, और ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये याद रखने की बात है, इफ यू ओवरलोड द मेमोरी तो ये नहीं होगा कि उसमें से कुछ याद रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, उसमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा. बिकॉज आवर माइंड विल बिकम शट. अगर टीचर ये सोच के आता है ना, आज मैंने 300 स्लाइडें पढ़ा के जानी है और सारा का सारा मैंने डायबिटीज जो है ना, वो एक एक चीज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी हर चीज बता के जानी है. प्लीज ट्रस्ट, none will go in the heads, because the moment we are overloading it, our mind will become shut. So only 5 to 9 chunks can go at one time from this bottleneck. अच्छा, इसको हम कैसे ये बड़ी जरूरी बात है, कैसे facilitate करते हैं? Rehearsal. The moment it passes through this, incidentally,
कोई लॉन्ग टर्म से लिंक आ गया, या अटेंशन थी, नई चीज थी, बट यू आर अटेंटिव. अटेंशन इज डिफाइंड एज द कॉग्निटिव एनर्जी टू असिमिलेट द इंफॉर्मेशन. अटेंशन का टेक्निकल वर्ड है, इट्स द कॉग्निटिव एनर्जी. कॉग्निटिव मतलब दिमाग की, इट्स अ लर्निंग से, नॉलेज से, इट्स अ कॉग्निटिव एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू असिमिलेट द सिग्नल्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इज कॉल्ड अटेंशन. अच्छा, तो अटेंशन और लॉन्ग टर्म से तो किस्मत से हमने उसको यहां डाल दिया. यहां उसको रिटेन करने के लिए हमें रिहर्सल चाहिए, या रिहर्सल चाहिए या प्रायर नॉलेज चाहिए. यह भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है. लिहाजा हर वो चीज जो आप पहली दफा पढ़ रहे हैं वो रिहर्सल के बगैर अंदर नहीं जाएगी आपके दिमाग में, और जो चीज आपको पहले पता है वो थोड़े पढ़ने से आप पढ़ लेंगे. लिहाजा इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स टू क्रिएट अ प्रायर नॉलेज बिफोर पुटिंग अ न्यू थिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमने बताना हो आपको कि मलेरिया क्या है, तो दिस इज समथिंग, मे बी समथिंग न्यू फॉर यू. मे बी आपने एफएससी में पढ़ा हो. मैं एक लेमैन मिसाल आपको देता हूं, टीचर्स को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिसाल देता हूं, सिंपल. अगर कोई टीचर ये पढ़ा रहा होगा आपको, आइए हम आपको मलेरिया के बारे में बताते हैं, एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडियम, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम. अगर आप उसको ये बताएंगे, आपको कभी बुखार हुआ है? मुझे हुआ था. किस किस्म का बुखार था? कि जी मुझे सर्दी लगती थी. आपको सर्दी वाला बुखार हुआ? सर्दी, तेज सर्दी लगती थी, फिर उतर जाता था, फिर ऐसे कपकपी होती थी. याद है आपको कभी बचपन में हुआ था ऐसे? व्हाट वी आर डूइंग इट, प्रायर नॉलेज को इग्नाइट कर रहे हैं. और मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि प्रायर नॉलेज को इग्नाइट करने का फायदा क्या होता है. तो ये टीचर्स के लिए भी बहुत अहम है और स्टूडेंट्स के लिए भी अहम है. वट एवर यू आर रीडिंग, देयर हैज टू बी जनरेशन ऑफ सम प्रायर नॉलेज ऑफ इट. बिकॉज द मोमेंट you actually आप प्रायर नॉलेज करते हैं, this actually provides that grease which will make it slippery to pass through the neck of it and go into the long term. अच्छा, नेक्स्ट ये है कि रिहर्सल क्या होती है. मैं आपको यहां साथ साथ में आपको टिप बताते रहता हूं. लिहाजा जब आप एक चैप्टर पढ़े ना एनाटॉमी का, तो आपने जब चैप्टर पढ़ लिया, खत्म करने के बाद उस चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ें. अब जब आप पढ़ेंगे तो कितनी देर में पढ़ लेंगे? अभी 15 मिनट पहले आपने वो पढ़ा था पैरा, 15 मिनट बाद दोबारा पढ़ेंगे तो कितनी देर में पढ़ लेंगे? जो आपने 1 घंटे में पढ़ा था, अब कितनी देर में पढ़ लेंगे? मे बी हाफ एन आवर. जब आप हाफ एन आवर में पढ़ लेना, एक दफा फिर पढ़ लें. अब आपको पढ़ लेंगे 10 मिनट में. अच्छा, अब पढ़ने के बाद चौथी दफा फिर पढ़ लें बगैर किताब के. अब आप कितनी देर में पढ़ लेंगे? 2 मिनट में. So this is what is rehearsal. Rehearsal at the time of study, this is what rehearsal is. And for teachers, teachers make it, they are part of their, teaching strategy, that once they tell them something, they never tell something once in a lecture. Depending upon the priority of the importance. The thing which is important should be described 5-6 times in a lecture, which is less important 4 times, less important 3 times. And students also don't postpone the rehearsal for tomorrow. Rehearsal has to be done at the time of the original study, and that is the time when it will get a grease and go into long term memory. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल के बड़ा आपको मजा आएगा. एक होती है मेंटेनेंस रिहर्सल, एक होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल. मेंटेनेंस रिहर्सल पता है क्या होती है? 0321680120. क्या नंबर है मेरा फोन का? 0321628000. नहीं बताना क्यों हुआ भला? आपकी ऑडिटरी का कैपेसिटी नहीं है उसको संभालने की, हालांकि आप ज़हीन हैं. अच्छा, 0321680120. हाँ नहीं, 6800 नहीं है भाई. अच्छा, आप बताओ बेटा, ये क्या नंबर था? क्या नंबर था? ये क्या नंबर था? लाउडली. इस तरह की रिहर्सल का नाम है, एक्सक्यूज मी, इस तरह की रिहर्सल का नाम है मेंटेनेंस रिहर्सल. There are 10 causes of pain in rhinitis, appendicitis, ectopic pregnancy. This is maintenance rehearsal. Maintenance rehearsal. It's called maintenance rehearsal, right? Please remember, maintenance rehearsal
जस्ट ऐसे होती है जैसे आपने किसी मिठाई के ऊपर वर्क लगाया हुआ होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग वो खत्म हो जाता है। और ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी कि मेंटेनेंस रिहर्सल लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं घुसा सकती। ये बाहर वाइवे के वक्त बाहर किताब लेके आप मेंटेनेंस रिहर्सल ऐसे कर सकते हैं, बट जो रियल रिहर्सल है उसे कहते हैं एलैबोरेटिव रिहर्सल। और इन दोनों में आपको मैं फर्क बताता हूं। आपने, अब मैं मिसाल, इनको एफएससी का मुझे अब याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोहर मॉडल वो याद होगा आपको। अच्छा, बोहर मॉडल को याद करने का एक तरीका है कि खुलासे के अंदर 3 लाइनें बोहर मॉडल की लिखी हो और आपको याद करते रहें। मैं आपको एक मेडिकल प्रोफेशन से बताऊं। फॉर एग्जांपल किसी शख्स के पेट में दर्द हो रहा है राइट साइड पर, उसी से कहते हैं राइट इलियक फोसा, पेन राइट इलियक फोसा। तो ये मुमकिन है कि आपको बताएं कि 12 कॉजेज हैं पेन राइट इलियक फोसा में और आप उसको याद कर लें। अपेंडिसाइटिस, यूरिटेरिक कॉलिक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आइलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, सॉस एब्सेस, हर्पीज जोस्टर एंड स्पाइनल प्रॉब्लम, इस तरह 8-10 आप याद कर लें। इट इज पॉसिबल, ठीक है। इस तरह की रिहर्सल को कहेंगे हम मेंटेनेंस रिहर्सल। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े जिसमें सारा कुछ बयान किया गया हो और उसके एंड में भी यही आपको 8 बातें याद हो, और जब आप रट्टा लगा के करें तब भी 8 ही बातें याद हो, लेकिन जो आपने पूरे प्रोसेस से गुजर के पढ़ा है, दैट विल रिजल्ट इन एलैबोरेटिव रिहर्सल, वेयर एज जो आपने पॉइंट्स याद किए हैं दैट विल रिजल्ट इन मेंटेनेंस रिहर्सल। इसीलिए हम मेडिकल कॉलेज के अंदर स्ट्रांगली इस बात को कंडेम करते हैं कि आप खुलासों वाली किताबें पढ़ें। एनाटॉमी की आपको किताबें मिलेंगी, इम्तिहान में पास करने वाली किताबें जिसमें सब पॉइंट्स में, बुलेट्स में लिखा हुआ है, वो किताबें खरीदें, मगर उनको टेक्स्ट बुक के बाद पढ़ें। इफ यू हैव रेड योर एनाटॉमी फ्रॉम आरजे लास्ट, फ्रॉम स्नेल, फ्रॉम ग्रेज एनाटॉमी, फ्रॉम ग्रांट्स एनाटॉमी और फ्रॉम डायसेक्टर, केनिंगham's मैनुअल ऑफ डायसेक्टर, उसके बाद एक छोटी सी किताब PB 84 या वो है, आई डोंट नो, छोटी सी किताब जिसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपकी रिहर्सल जो है वो एलैबोरेटिव रिहर्सल होगी। समझ में आई बात? और अगर आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करके स्टेज के अंदर नंबर ले लिए जल्दी से, व्हाट आर द 8 कॉजेज, व्हाट आर द 8 ब्रांचेस कम्स फ्रॉम दिस आर्टरी, नंबर उस वक्त आ जाएंगे। लेकिन जब आप 5 साल के बाद इमरजेंसी में एक स्टैब इंजरी के साथ एक वूंड आएगा, तो वहां वो बिल्कुल ये कहेगा, मुझे यहां स्टैब इंजरी हुई है, प्लीज बताएं 5 कौन सी आर्टरियां यहां से निकल रही थी, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट थे। उसमें आपने पिक करके कहना है कि ओ दिस इज द न्यूट्रेंट आर्टरी, दिस इज द फलानी। वो तब आएगी जब आपने एलैबोरेटिव रिहर्सल। आपको बहुत सीनियर कहेंगे, लेकिन वो जितने भी सीनियर है मुझसे ज्यादा सीनियर नहीं है। अब मेरी बात माने, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टडिंग फ्रॉम big textbooks. Maybe you have to read them once and then the rest of your rehearsal will be maintenance from small books, but it has to be, thank you, but it has to be read from big books. इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी टेक्निक्स बताता हूं which will convert the maintenance rehearsal into elaborative rehearsal. आपको समझ में आ रहा है ना? बोर हो रहे हो ना, सच बताना? अच्छा, लेकिन मैं जब टीचर्स को पढ़ाता हूं वो कहते हैं बड़ा बोरिंग लेक्चर होता है आपका। ओके, एनीवेज, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। नोट्स अपने बनाएं, अगर आपने बनाने भी है ना, अपने नोट्स बनाएं। गो फ्रॉम द बुक एंड मेक योर ओन नोट्स एंड दीज विल बी गुड इनफ फॉर यू। डोंट गिव इट टू योर जूनियर्स, उसकी अपनी कबर है। और दूसरा, 3 और टेक्निक्स हैं जिनसे आपकी रिहर्सल कन्वर्ट्स फ्रॉम मेंटेनेंस रिहर्सल टू एलैबोरेटिव रिहर्सल। गौर से देखना क्या है। सबसे पहले है कि, अच्छा सॉरी, ये ऐसे बता दूं, जिस वक्त आपकी डीप प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो आपके जहन में नॉलेज इस तरीके से होता है। इसको टेक्निकली कहते हैं कॉबवेब्स, मकड़ी के जाले की तरह होता है। नॉलेज आपके अंदर मौजूद होता है, मगर वो गुड मुंड हुआ होता है, क्योंकि आपने याद करना होता है 8 कॉजेज, 15 कॉजेज, 4 कॉजेज, वो कोई मीनिंग आपके लिए नहीं होता, इट्स ओनली अ मेमोरी। लेकिन जिस वक्त आपने एलैबोरेटिव रिहर्सल की होती है, तो आपके दिमाग में कॉबवेब्स बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और उसकी 3 टेक्निक्स हैं, गौर से सुनिएगा। पहली टेक्निक है ग्रुप स्टडी। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर रीडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एनीथिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो खामोशी से उसने कहो, अच्छा
आप भी पढ़ो, आप दोनों रूममेट हैं तीनों, हम भी पढ़ते हैं पढ़ते। तुमने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ओ मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। मेरे ग्रुप स्टडी एक्चुअली कन्वर्ट्स अ मेंटेनेंस रिहर्सल इनटू अ एलैबोरेटिव रिहर्सल। सेकंड ये है पीयर असिस्टेड लर्निंग। ये सर की स्पेशलिटी है। इनका जो एमसीपीएस एचपी का वो था, तो प्रेजेंटेशन वो इसी पर उन्होंने, सर ने रिसर्च भी की थी, पेपर भी लिखा था। पीयर असिस्टेड लर्निंग का मतलब होता है कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को पढ़ाए, थर्ड ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाए। मैम इसका हमने कुछ करना है, हमने पहले भी सोचा था, हमने कोई ना कोई सेशन रखने हैं जिसमें पीयर असिस्टेड लर्निंग हो, डीएमई के सेशंस में। और तीसरा तरीका इसका है टीचिंग। आप जब छुट्टियों पे घर जाए ना, तो मामा को कहें, मामा आए मैं आपको ना अपर लिम्ब पढ़ाती हूं। पता है अपर लिम्ब में बोन होती है, फलाना होता है। बट गुड थिंग इज टीच योर फ्रेंड्स, टीच योर जूनियर्स, टीच देम। टीचिंग एक्चुअली क्लैरिफाइज। तो ये तीन तरीके हैं जो कि मेंटेनेंस रिहर्सल को एलैबोरेटिव रिहर्सल में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ओके। और चौथी जो तीसरी चीज है ना, वो बड़ी जरूरी है, और ये ज़हीन स्टूडेंट कर लेते हैं, ये नॉलेज को ना चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा ब्रेन चंक्स को करता है। अगर यानी हमारे सर ने 5 डब्बे उठाने हैं, 5 डब्बे, इस पे डिपेंड नहीं करता कि डब्बा कितना बड़ा है, जितना मर्जी डब्बा हो लेकिन 5 हो। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो चीजों को एक एक डब्बे में डाल के 50 चीजों के 5 डब्बे बना लेते हैं। बिकॉज आवर ब्रेन, जैसे होता है ना जहाज में, बड़े जहाजों में कहते हैं यू कैन टेक ओनली 3 आइटम्स, इररिस्पेक्टिव कि उसका वेट कितना है। तो चंकिंग इज एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू स्मॉल थिंग्स नो मैटर हाउ बिग इट इज। मैं इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं, अलर्ट रहना, सारे अलर्ट रहना। ये एक नंबर है, ये आपने सब अलर्ट है, मोबाइल से तो नहीं कोई खेल रहा? ओके, ये 5 सेकंड में आपने याद करना है। 1, चुप चुप, किसको याद हुआ है? यस प्लीज। वेरी नाइस। मैं आपको ना अभी इन्होंने जो किया है ना, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप में से कितनों को याद नहीं हुआ? रेज योर हैंड्स। देखिए तकरीबन 95% को याद नहीं हुआ, इनको याद हो गया है। और जो मैं करने जा रहा हूं वो इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया। अब देखिए गौर से, अब मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। क्या नंबर है? जोर से, जोर से बेटा। 100%। क्या नंबर था बेटा? जोर से। 5, 1947, 1965, 2019 or Now you will always remember it. And that boy actually did the same. जब मैंने उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने immediately इसको chunks में divide कर लिया। Now see, this is one chunk actually. 5 on one side, 5 on the other side. Our mind will perceive it as one chunk. The second chunk is 1940. We all know, we have a prior knowledge of 1947. And we have a knowledge of 1965. And this is 201. So our brain has to remember it 1, 2, 3, 4, 5, 4 chunks. And still we have got a capacity of having 9 chunks. अगर हम बहुत attention पूरी दें। इसके मुकाबले में, just you look at it, they're all cobweb in our mind. So the intelligent students actually makes chunks. And there are a lot of techniques of making chunks. Attention मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़। Attention जो है, थोड़ी इसको थोड़ी तवज्जो दीजिएगा सारी। Attention जो है ना, attention basically सिर्फ student पे depend नहीं करता। Attention, okay, I skip it, don't worry. बस attention का मतलब है तवज्जो, जो पढ़ना तवज्जो से पढ़ना। Because it's a little, okay. So, in other words, from here to here, if something has to go, it can only go if it is coupled with rehearsal. And rehearsal has to be elaborative rehearsal. It will stay here, short-term memory में, it will stay here, some of it may slip there, लेकिन surface पे रहेगी। आपने रात को रट्टा लगाया, सुबह इम्तिहान में आप कर सकते हैं, मे बी। लेकिन एलैबोरेटिव रिहर्सल अगर ना हुई
तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहेगी। ओके, तो अटेंशन के बाद ये मैं स्किप करता हूं। असल में ये वो 3 फैक्टर हैं जो कि अटेंशन को डिटरमिन करते हैं। आई थिंक ये आपकी उससे बियॉन्ड है, इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी जो अहम चीज है जो हमें लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में पहुंचेंगे ना तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसलिए कि वंस इट इज इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी इट इज सेफ। कभी आप अपने नाना, आप में से ग्रैंड पेरेंट्स किनके साथ रहते हैं, कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछना कि नाना ये बताइएगा कि जब आप स्कूल गए थे, ही विल विविडली रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ही विल रिमेंबर एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज चली जाए बस वो पड़ी रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिर्फ एक गड़बड़ होती है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में से तलाश करना मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग जंक यार्ड। और आज मैंने आपको यह भी बताना है कि लॉन्ग टर्म से तलाश कब कर, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम तो तलाश करना है। एक पेशेंट आएगा जिसके हाथ में एक रिपोर्ट पकड़ी हुई है और उस रिपोर्ट पे लिखा हुआ है बिलीरुबिन 4.5, तो ये क्या मतलब है इसका, क्या है इसको, ये हमें लॉन्ग टर्म से तलाश करना पड़ेगा। तो आज आपको मैं तलाश करने की टेक्निक भी बताऊंगा। बट एनीवेज, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालने के लिए रिहर्सल के साथ जो एक जबरदस्त एबिलिटी हेल्प करती है उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब लर्निंग, मेटाकॉग्निशन का मतलब लर्निंग अबाउट लर्निंग। वो तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स जो जैसे हम कर रहे हैं अभी, लर्निंग के प्रोसेस को समझ रहे हों कि ये लैबोरेटरी नर्सिंग है, ये फलाना है फलाना, तो उनके अंदर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बड़े आराम से चली जाती है। मेटाकॉग्निशन ये होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नॉलेज अबाउट कॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ योर कॉग्निशन। और उसके लिए मैं तफसील में नहीं जाता, मैंने बाकी स्लाइड सारी हाइड कर दी हैं। सिर्फ ये एक चेक लिस्ट है जो आपको शेयर करके मैं आगे मूव करूंगा। जब भी आप पढ़ें ये याद रखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग दिस इंफॉर्मेशन। द पर्पस ऑफ लर्निंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज टू नो कार्डियक साइकिल, यानी हार्ट पंप करता है तो वो एक साइकिल बनता है, मैं वो पढ़ने जा रहा हूं। तो आप 1 मिनट लगाएं ये अपने आप से पूछने के लिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये क्यों पढ़ना चाह रहा हूं, क्यों पढ़ना चाह रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाकॉग्निशन। द सेकेंड स्टेप इज, डू आई नो एनीथिंग इट अबाउट दिस टॉपिक बिफोर, यानी प्रायर नॉलेज। इसके बारे में मुझे क्या पता है। एफएससी में मैंने पढ़ा था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और उन 4 चैम्बर्स के अंदर से हार्ट, ये आपने खुद एक्सरसाइज करनी है। और तीसरा सवाल ये है, डू आई नो द स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प मी लर्न। अच्छा मैं क्या करूं, मतलब मैं किताब से पढ़ूं कि मैं मैडम से जाके पूछूं, या वो मेरा एक दोस्त है बड़ा लायक सा है उससे बात करूं, या मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो ही देख लूं, या मैं क्या करूं। तो जो भी स्ट्रेटजीज उनको आप दोहराएं। और चौथा ये है, एम आई अंडरस्टैंडिंग एज, अब मुझे समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आखिर में यह है कि अगर जो मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको करेक्ट कैसे करूंगा। और लास्टली यह है कि जो मैं करना चाहता था मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया। ये बहुत थ्योरेटिकल लग रहा है, इट लुक्स वेरी थ्योरेटिकल, लेकिन कुछ अरसे बाद आप इन टेक्निक्स को सीख जाएंगे तो इट विल बिकम ऑटोमेटिक। पढ़ते वक्त फौरन आप इस एक्सरसाइज को करेंगे और जितने जितने मेटाकॉग्निशन के हिसाब से आप लिटरेट होते जाएंगे एंड और आपको ये टेक्निक्स आपकी रिफ्लेक्स बनती जाएंगी, आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होता जाएगा, चीज़ों को समझना आसान होता जाएगा। और वो जो रट्टे वाली बात है ना, वो जो मैं पहले दिन आपको कहा था, आपके दिमाग से हमने ना वो रट्टे वाली बात निकालनी है, क्योंकि अब आपकी जंग नंबर लेने की जंग नहीं है, अब आपकी जंग एक ह्यूमेन कॉम्पिटेंट सेफ डॉक्टर बनने की है। उसका इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है कि आपने बोर्ड में टॉप किया था कि नहीं टॉप किया था, या आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए थे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए। तो ये दिमाग से ये चीज निकालनी है अब कि मैं बड़े नंबर लेने वाला आदमी हूं, क्योंकि नंबर लेने वाला एक गुड स्किल है, लेकिन असल स्किल ये नहीं है। ये सिर्फ आपको यहां पहुंचा दिया है स्किल ने, आगे आपने खुद करना है। इसने आपको समंदर में धक्का दे दिया बस, बाकी तैरना आपने खुद है। राइट, इनको मैं चुप करता हूं 2 वजूहात से। एक तो ये कि आप इसको दिमाग में अच्छी तरीके से दोहरा लें, और दूसरी रीजन इससे भी अहम है, वो ये कि मेरा गला थक गया है एंड आई वांट टू टेक 1 मिनट रेस्ट। तो फॉर 1 मिनट आई विल नॉट टॉक। आप गौर से ये सारी चीजें देखकर, और इनको मेमोराइज नहीं करना, ट्राई टू एसिमिलेट इट। आपस में नहीं बोलना।
Okay, lovely. So these are your guidelines. Whenever you study next time, please keep all these things and try to do it religiously. पहले याद करके और फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो यहां से हमने अंदर पहुंचा दिया तो नाउ इट गोज इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज सो बिग लाइक दिस। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू हज, तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि जो मस्जिद नमरा है ना, तो उसके अंदर खुतबा सुनेंगे, अदरवाइज लोग अरफात में दूर दूर इधर टेंट लगा के बैठ जाते हैं। आपने जिन्होंने हज किया होगा, हज किया किसी ने? माशाल्लाह। तो उसमें ना दूर दूर आप लगाते हैं। अच्छा, हमने कहा कि हमने मस्जिद नमरा, तो मेरे एक दोस्त थे साथ, वो डॉक्टर साहब भी थे, महमूद साहब, तो वहाँ हम गए ना तो दरवाजे से घुसा ही ना जाए। तो मैंने 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा यार अंदर नहीं जाया जाएगा बड़ा। उन्होंने कहा नहीं यार कोशिश करते हैं। और वो ना हम खिंच कुछ के दरवाजे से, जो ही दरवाजे से हम अंदर गए ना, अंदर सारी मस्जिद खाली पड़ी थी, सारी, इतनी बड़ी मस्जिद थी, सिर्फ दरवाजे के ऊपर ना लोग एक दूसरे। अंदर गए तो जबरदस्त फर्स्ट क्लास पूरी आराम से, जहां मर्जी बैठे, टेक लगा के बैठ गए और कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म, सो आई यू नो इट ऑलवेज कम्स इन माय माइंड, यू नो व्हेन आई डिस्कस लॉन्ग टर्म। यहां लगता है कि पता नहीं नॉलेज कैसे जाएगा। द मोमेंट इट एंटर्स इन, देयर इज अ ह्यूज कैपेसिटी देयर इन द ब्रेन, देयर इज अ ह्यूज कैपेसिटी देयर इन द ब्रेन एंड इट गोज देयर, राइट। लेकिन एक बड़ा मसला है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को यहां से अंदर ले जाता है, फिर स्टोर कर लेता है, जब जरूरत होती तो निकाल लेता है। अब जरा गौर से एक बात सुनिएगा, गौर से। इंफॉर्मेशन आपने अंदर पहुंचा दी, ये 2 तरीके से पहुंच सकती है। एक तो पहुंच सकती है रैंडम। तुम्हारे बैग में क्या है बेटा? हैं? बॉटल? और क्या क्या है? और क्या क्या है? ये इसमें रख लो, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। रखो इसके अंदर। अच्छा, अगर फर्ज करें, मैं खोल के नहीं देखूंगा, डोंट वरी। अच्छा, अगर फर्ज करें ऐसे ऐसे करके इसको घुमा दें, अभी लोग अंदर डाल दिया ना रैंडम, और मैं इनसे शाम को कहूं कि निकालो, तो ये क्या करेंगी? कभी हाथ इनका इधर जाएगा, कभी हाथ इनका इधर जाएगा। लेकिन ये काम और कर सकती थी। क्या कर सकती थी? निकालो जरा। ये ऐसे कर सकती थी, देखा शी इज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। ये ऐसे कर सकती थी कि इसके साथ ना ये वाला धागा बांध देती और ये इसके अंदर डाल देती, और ये धागा बाहर लटकता रहता है ऐसे, ठीक है ना। बहुत बड़ी फाइल के अंदर टैग लगता है। या ये एक और काम करती, इन्होंने ये खाना बनाया होता इस चीजों के लिए, ये खाना कार्डों के लिए, अंदर वाला खाना टिश्यू पेपर या कोई और जरूरत की चीज के लिए, पीछे वाला किताबों के लिए, पीछे वाला पैसों के लिए। तो जब रखते वक्त इनको पता होता कि मैंने फलाने वाले खाने में रखनी है, तो आइदर यू टैग इट विद समथिंग और यू स्पेसिफाई अ प्लेस एंड पुट इट ओवर देयर। सो व्हेन वी स्लिप आवर नॉलेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इफ वी रैंडमली थ्रो इट देयर, तो 1 मिनट के बाद भी इसको तलाश करना मुश्किल हो रहा था। इसको धागे से बांधने का नाम है एनकोडिंग। तो जब भी आप चीज को याद कर रहे हैं तो इसको किसी चीज के साथ कोड कर दें, और जब आप कोड कर देंगे किसी चीज को, अब आपको याद रहेगी। एनकोडिंग क्या होती है? मैंने आपको मिसाल तो दे दी है। हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल नॉलेज के अंदर बेस्ट एनकोडिंग इज कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। अनीमिया किसी को पता है क्या होता है? कम हीमोग्लोबिन। अगर मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर, सर अनीमिया पे 2 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है ना, पूरे हीमोग्लोबिन की कैसी साख्त है, सेल में क्या है, 2 घंटे का लेक्चर दे दूं और फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि इसको रिप्रोड्यूस करें, तो आप उसमें से 10-15% ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं शुरू ये करूं कि आइए हम आपको एक मरीज से मिलवाते हैं जिसको अनीमिया है, और ये वो पेशेंट है जिसको अनीमिया है, अब गौर से उसको देख रहे हैं, उसका फीका सा रंग है, बीच में टीचर ने यूं किया तो ये सफेद सा था, और हाथ की पाम उसकी सफेद सी थी। अब आपको अनीमिया पढ़ाना शुरू किया गया, तो अब जो अनीमिया का नॉलेज है वो टैग हो गया उस मरीज के साथ, और जिंदगी में कभी भी उस तरह का आपको मरीज नजर आएगा तो यू हैव ऑल द नॉलेज अवेलेबल टू दैट।
So now you are intelligent people. You create tags yourself. When you are reading anatomy, you create a tag in your mind. Some kind of a tag. And when you tag it and put it in your long term memory, you will always remember. मुझे कई बातें याद हैं. ये जो हमारा है ना पेल्विस की एनाटमी, ये हमने निश्तर के कासिम हाल की छत पे बैठ के याद की थी. उस दौरान के अंदर हमारे एक दोस्त का बैग ऊपर से नीचे गिर गया था. उसमें उसकी घड़ी थी, उसके वो फिर हमने तलाश किया तो वो नीचे झाड़ियों में फंसा हुआ था. अब जब मैं पेल्विस का कभी भी करता हूं ना, मुझे ये वाकया याद आ जाता है. हालांकि इसका पेल्विस की एनाटमी से क्या ताल्लुक है? बिकॉज समहाउ दैट इंसिडेंस हैज बीन टैग्ड विद दैट नॉलेज. Now I leave it to you how to create the tags. But for teachers, they have to create a clinical contextual tags. And when knowledge go with a tag, it is retrievable, जैसे मैंने आपको मिसाल में दिया था. I'll just skip it. और ये इनकोडिंग जो है विजुअल भी हो सकती है, ये अकॉस्टिक ऑडियो भी हो सकती है. इसीलिए आपने इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस डिवाइस को? ऑडियो विजुअल डिवाइस. इसका नाम ऑडियो विजुअल क्यों कहते हैं? कि आप ऑडियो भी हैं और विजुअल भी हैं. आप दो को टैग कर रहे हैं. ये वाला पूरी एक थ्योरी है ना. देखिए, मैं आपको खड़ा होकर कॉस्टिक यूं भी पढ़ा सकता था. लिखा हुआ कॉस्टिक आपको विजुअल टैगिंग कर रहा है और बोला हुआ आपको अकॉस्टिक टैगिंग कर रहा है. एंड इन आवर नॉलेज यू कैन ऑल्सो हैव सिमेंटिक एनकोडिंग. सिमेंटिक का मतलब होता है कि आप उसके साथ एक इवेंट अटैच कर दें, कोई इवेंट अटैच कर दें, आप कोई मीनिंग अटैच कर दें. और चौथा यह है टेक्टाइल भी. एनीमिया के मरीज को आपने छू के देख लिया, उसकी आंखों को ऐसे करके देख लिया. तो अगर आप 4 टैग आपने कर दिए, अब ये नॉलेज अंदर कोई सा भी टैग अवेलेबल होगा तो एट द टाइम जब पेशेंट आएगा, आपको जो मैडम एनाटमी पढ़ाएंगी, जो फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने एबीसी क्यों पढ़ी थी? एबीसी क्यों पढ़ी थी? ताकि आप लफ्ज बना सकें. एज सच एबीसी सीखने का कोई पर्पस नहीं था, आप उसे लफ्ज पढ़ा सकें. एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि इसको मरीज पर अप्लाई करके उसमें से बीमारी निकाली जा सके. और जब वो टैग होके आपके अंदर जाएगा तो मेमोरी में एक रट्टे के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि एक रियल नॉलेज के तौर पर रहेगा. दिस इज व्हाई देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड डुअल व्हेन वी डू एन ऑडियो विजुअल टैगिंग, एंड वी कॉल इट मल्टी एनकोडिंग व्हेन वी हैव मल्टीपल टैग्स. तो आपके लिए क्या है एडवाइस? Whenever you are studying, create tags, and I leave it to you कि आप किस किस्म का टैग क्रिएट करते हैं. ये भी टैगिंग के कुछ तरीके हैं. मैं इसको इंशाल्लाह ये सब्सिक्वेंटली बताएंगे ताकि बात हमारी लंबी ना हो जाए, जिनको हम फर्स्ट लेटर मेथड कहते हैं, और आई जस्ट स्किप इट. लेकिन जो बेस्ट कोडिंग है ना, बेस्ट कोडिंग ये है कॉन्टेक्स्ट. ये आपने किस लिहाज से किया था. लिहाजा कार्डियक साइकिल पढ़ते वक्त एज एन इंस्टीट्यूशन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू अ पेशेंट और शो यू सम काइंड ऑफ अ वीडियो और सम काइंड ऑफ अ एक्सपीरियंस. वी विल इंशाल्लाह डू इट. लेकिन अगर वो नहीं भी होता, आपने खुद वो कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ नॉलेज को अपने अंदर लेके जाना है. उसके बाद वो स्टोर हो जाती है. ये मैं क्विक दिखाता हूं, आपको इसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है. हमारी मेमोरी सेमेंटिक होती है, एपिसोडिक होती है, डेक्लेरेटिव होती है, प्रोसीजरल होती है, कंडीशनल होती है. जस्ट लीव इट. वो यहाँ होती है, वो यहाँ होती है. सिर्फ एक चीज पर आपको मैं फोकस करके आगे चला जाऊंगा. एक मेमोरी हमारी वो है, अब ये सारा कुछ सीखने से हमारे दिमाग में कहानी बन जाती है ना पूरी. सर, एक वो मेमोरी है जिसको आप बयान कर सकते हैं. ये बताइए कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हुए आपको क्या क्या मसाइल पेश आए. ये डेक्लेरेटिव नॉलेज है. यू कैन शेयर विद मी. एक नॉलेज ये है, आप में से गाड़ी कौन चला लेता है? कार. अब कार चलाने का जो नॉलेज है वो प्रोसीजरल नॉलेज है. एक्चुअली आप उसको याद नहीं रख रहे होते कि अब मैं गियर लगा रहा हूं, अब कुछ कर रहा हूं, अब बस चला रहे होते हैं. तो हमारे दिमाग के अंदर नॉलेज जो है ना, वो इस तरीके से 2 दफा इकट्ठा होता है. अच्छा, नॉलेज जिस जगह पर इकट्ठा होता है, मैं इन सबको स्किप करें, जिस जगह पर इकट्ठा होता है उसे कहते हैं स्कीमा. जैसे आपका ये जो खाना है ना, ये स्कीमा है. ये खाना एक और स्कीमा है.
ये है कार्डों का स्कीमा, ये है कॉइन्स का स्कीमा, ये है आपके फलां चीज़ों का स्कीमा। तो हमारे दिमाग के अंदर जो नॉलेज है वो जिस तरीके से अंदर इकट्ठा होता है उसे हम स्कीमास कहते हैं। इसलिए जो नॉलेज रैंडम फेंकेंगे ना आप अंदर, वो तलाश करते वक्त नहीं मिलेगा। जिसको स्कीमा में डालेंगे, और स्कीमा हमारे दिमाग में बचपन से बनना शुरू हो जाते हैं। और स्कीमा का मतलब यह है कि पहले से जो हमें पता है उसको याद रखकर जब नॉलेज डालेंगे तो वो उसी पर्टिकुलर खाने के अंदर जाएगा। यहां बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको इसको एलेबरेट, तो ये देखिए हमारे दिमाग में ये होता है सारा कुछ, और ये स्कीमाज हैं, ये स्कीमाज, ये हमारा डेक्लरेटिव नॉलेज है और ये हमारा प्रोसीजरल नॉलेज है जो हमारे दिमाग में इकट्ठा हुआ है। आई थिंक दिस इज लास्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड। जो कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है हमारी जिंदगी में, इसके असरात क्या है। देयर इज अ बॉटलनेक हियर when you are studying, when you are in lecture, or in your demonstration, in your tutorial, please remember there is a bottleneck. उस bottleneck को हमें ग्रीस करना पड़ेगा, और ग्रीस करने की सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। दूसरी बात यह है कि if we have got a prior knowledge, then assimilation of knowledge is easy.